السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ قربانی کے ایام میں جانور کی قربانی ہی واجب، ایام گزرنے کے بعد رقم صدقہ کی جا سکتی ہے۔ سیکریٹریٹ کی مساجد کا انہدام قابل مذمت، حکومت سے دوبارہ اسی مقام پر مساجد تعمیر کرنے کا مطالبہ۔ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ کی میڈیا کانفرنس۔ جی ایچ ایم سی میئر بی رام موہن کووڈ پازیٹیو، میئر نے اپنے آپ کو ہوم کوارنٹائن کر لیا۔ شاہآباد حدود میں ہوئے سڑک حادثے میں بائک پر سوار 2 بھائی مقام حادثے پر ہی فوت، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد نے کہا ہے کہ قربانی کے ایام میں جانور ہی کی قربانی واجب ہے۔ ایام قربانی کے دوران قربانی کی رقم صدقہ کی جائے تو یہ قربانی کا بدل ہرگز نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے قربانی میں شمار کیا جائے گا۔ مولانا مفتی خلیل احمد نے 4 جولائی کو جامعہ نظامیہ کی جانب سے جاری فتوے سے متعلق غلط فہمیوں کی تفصیلی وضاحت کی اور کہا کہ فتوے میں صاف طور پر تمام امور کے بارے میں تفصیلات دی گئی ہیں، تاہم انہوں نے بتایا کہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو اگر کسی مجبوری کے تحت قربانی نہ کر سکے تب بعد میں رقم صدقے کی دی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب نے مزید بتایا کہ قربانی کا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں، غربا میں بانٹ سکتے ہیں، تاہم 3 حصوں میں تقسیم کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جاریہ سال وبا کے چلتے چرم کی وصولی نہیں کی جا رہی ہے۔ سیکریٹریٹ میں 2 مساجد کے انہدام کی بھی مفتی صاحب نے مذمت کی اور مساجد کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا۔ قربانی واجب ہے۔ ان 3 دنوں میں ہمارے پاس 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی ضروری ہے۔ اس کی قیمت اگر آپ دے رہے ہیں ان 3 دنوں کے اندر یا 3 دنوں سے پہلے تو آپ کی رقم صدقہ ہے، قربانی کا بدل نہیں ہے، اس سے آپ کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ سب کرونا کے پیش نظر یہ جو 3 حصوں کا جو معاملہ ہے اس تقسیم کو لے کر کیا اس میں جواز ہے اور کتنی گنجائش رکھی گئی ہے؟ قربانی کے گوشت میں 3 حصے کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کو سہولت ہے تو 3 حصے کرنا افضل ہے تاکہ غریبوں کا بھی فائدہ ہو، رشتہ داروں کا بھی حق ادا ہو اور خود گھر والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی دشواری ہے تو آپ کو سہولت ہے شریعت کی جانب سے کہ جیسا بھی مناسب سمجھیں کر سکتے ہیں۔ اگر پورا گوشت خود ہی اپنے گھر میں رکھ لیں، اپنے ہی بال بچوں کو کھلائیں تو بھی حرج نہیں ہے۔ شریعت خود اجازت دے گی نا کہ تقسیم کرنا 3 حصے واجب نہیں ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ کو سہولت ہے تو کیجئے، نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر تقسیم ہوتا ہے یا انکار ہوتا ہے تو وہ گوشت کہاں واپس اپنے گھر پہ لا سکتے ہیں یا کسی غربا میں لا سکتے ہیں اپنے گھر؟ اگر کوئی آپ کسی کو دیے انہیں نہیں لے رہا ہے تو وہ گوشت آپ کا ہی ہے، اب آپ اس کو خود اپنے لیے رکھ لیجئے یا کسی اور غریب کو دیجئے یا آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں اس کا مصرف اختیار کر سکتے ہیں۔ جامعہ نظامیہ سے جو فتویٰ اس سے پہلے جاری ہوا، میڈیا والے اس کا غلط استعمال کیے، جبکہ جامعہ نظامیہ کے فتوے میں ابتدا میں یہ بات بتلائی گئی کہ 3 دنوں میں خون بہانا، قربانی کرنا ہی افضل عمل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان 3 دنوں میں کوئی آدمی جانور ذبح نہیں کر سکا، کچھ بھی وجہ ہوں گی، تو پھر ایسی صورت میں 3 دن گزرنے کے بعد اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یہ بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی دے بغیر خالی قیمت اگر دے دیے تو کافی غلط ہے۔ یہ جو میڈیا کی جانب سے یا لوگوں کی جانب سے جو بات پھیلائی گئی یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ 3 دن سے پہلے یا 3 دن کے اندر آپ پیسے صدقہ کریں گے تو قربانی نہیں ہے، وہ قربانی کا بدل نہیں۔ سب سے پہلے تو شہید نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر شہید کر دیے ہیں تب اس کی تلافی یہی ہے کہ دونوں مساجد
जिस जगह थे उसी जगह दोबारा उसकी तामीर की जाए, यही शरीयत का हुक्म। रियासती वज़ीर के.टी. रामा राव की जानिब से हर इतवार सुबह 10 बजे 10 मिनट घर की सफाई और पानी की नक्काशी करने के प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था, जिसको तमाम रियासती वज़रात जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर ई दयाकर राव ने इतवार को 10 बजे 10 मिनट प्रोग्राम का अहतमाम किया और साफ़ सफाई, पौधों को पानी देने के अलावा पानी की नक्काशी भी अमल में लाई। रियासती वज़ीर माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने रियासत की 2 तालिबात को मुबारकबाद पेश की, जिन्हें अमेरिका की आइबन यूनिवर्सिटी के मास्टर्स प्रोग्राम की पेशकश की गई है। वाज़ के ज़िले रंगारेड्डी की मुतवत्तिन सूर्या दीपिका और ज़िले मंचिलियाल की मुतवत्तिन सुहर्षा को उनके तालीमी रिकॉर्ड के पेश नज़र स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ साइंस ने उन्हें दाखिले की पेशकश की है। मेयर जीएचएमसी बी राम मोहन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया है। वाज़ है कि क़ब्ल अज़ीं मेयर के कार ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। మరి ఈరోజు నిన్న జరిగిన మరి ర్యాపిడ్ టెస్ట్లో కోవిడ్ ఉన్నట్టుగా నిర్ధారణ కావడం జరిగింది. మిత్రులకు మరి నగర ప్రజలందరికీ కూడా కరోనా వచ్చిందని మరి ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మరి నేను కరోనా వచ్చినా మరి ఏ సిమ్టమ్స్ లేకుండా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం. మరి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ సపరేట్గా ఒక రూమ్లో ఉంటూ ఎవరిని దగ్గర రానియకుండా కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ కూడా మరి ఆ నిబంధనలన్నీ కూడా కరోనా నిబంధనలన్నీ కూడా పాటించుకుంటూ మరి సపరేట్గా ఒక రూమ్లో ఉంటూ దానికి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ కానీ అవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం. మరి ఎవరు కూడా మరి కరోనాకు భయపడి ఏదో అయిద్ది అని చెప్పి భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఈరోజు కరోనా వచ్చినా మరి ఒక మనోధైర్యంతో మరి దాన్ని ఎదుర్కోగలననే ధైర్యంతో మరి ముందుకు పోతే మరి ఇలాంటి కరోనాలు నిజంగా మనల్ని ఏం చేయలేవు. మనోధైర్యానికన్నా మించింది ఏది కూడా లేదు. డెఫినెట్గా మరి కరోనా సమయంలో కూడా మా మున్సిపల్ మంత్రి గారి ఆదేశంతో మరి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎన్నో కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి వాటిని కూడా ఎప్పటికప్పుడు మరి ఫోన్ ద్వారా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్ష చేసుకుంటూ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా ఎక్కడ ఆటంకాలు లేకుండా మరి ముందుకు పోయే విధంగా మరి అధికారులందరినీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తూ ముందుకు పోతున్నాం. మరి ఇదే విధంగా ఎవరికైనా కరోనా వచ్చినా ఏం అదరక బెదరక గుండె నిబ్బరంతో మనోధైర్యంతో ముందుకు పోతే కరోనాను విజయవంతంగా మనం జయించగలుగుతాం. మరి మనకు మనం సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ ఒక సపరేట్ ప్లేస్లో వండుకుంటూ అన్ని నిబంధనలు పాటించుకుంటూ ఉండాలని చెప్పి మరి నా మంచి కోరే నా మిత్రులందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి నగరవాసులందరికీ కూడా మీ బొంతు. सोशल सर्विस के नाम पर मासूम आवाम को ठगने वाले एक शख्स के खिलाफ चंद्रागुट्टा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद इमरान नामी शख्स ने HYC के सरबरा सलमान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया है कि सोशल मीडिया पर जज्बाती पोस्ट अपलोड करते हुए रकम वसूल की गई और रकम को अपने पर्सनल अकाउंट्स में मुंतकिल किया गया। चंद्रागुट्टा पुलिस ने सिलसिले में धोखाधड़ी का एक मुकदमा सलमान खान नामी नौजवान के खिलाफ दर्ज किया है।
शाहबाद पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके मुदूर गेट के करीब हुए सड़क हादसे में बाइक पर सवार 2 भाई फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक तेज़ रफ्तार DCM ने बाइक को टक्कर दी, जिस पर सवार 70 साला लक्ष्मैया और 50 साला चिन्नैया बरसर मौका फौत हो गए। इतला मिलते ही शाहबाद पुलिस नाशों को एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जबकि सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। हादसे के फौरी बाद ड्राइवर मफरूर हो गया। गटकसर टोलगेट के करीब पेश आए सड़क हादसे में राजस्थान से आ रही एक लॉरी उलटते हुए औटंग रिंग रोड के नीचे जा गिरी। इस हादसे के दौरान ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हुए, जिन्हें बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। मज़कूरा लॉरी में बकरों का लोड मौजूद था। मुतल्लिका पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। रावीराला आउटर रिंग रोड के करीब एग्जिट 13 के करीब पेश आए हादसे में DCM ड्राइवर की मौत वाक़ हुई। तफसीलात के मुताबिक लॉरी का टायर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद बेकाबू लॉरी ने DCM को टक्कर दे दी। DCM ड्राइवर मुकाम हादसे पर ही फौत हो गया, जबकि लॉरी ड्राइवर को जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया। आदि बटला पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। మీరు ఎక్కడికి వస్తారు బాబు? మీరు ఎక్కడికి వస్తారు? ఎక్కడి నుండి వస్తారు? ద్రోణాచలం. అక్కడ నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? వరంగల్ వెళ్తున్నా. ఓకే, మీరు ఉండేది ఎక్కడ? డోన్. ఓకే, అరుణాచలం, ద్రోణాచలం. ఏ డిస్టిక్? కర్నూలు డిస్టిక్. ఓకే. जुनूब मगरबी मानसून के ज़ोर पकड़ने के बाद तेलंगाना में माह जुलाई में रिकॉर्ड बारिश हुई है, जो औसत से कहीं ज़्यादा है। माह जुलाई को हमेशा मानसून का समरावर महीना समझा जाता है और ताहाल माह जुलाई में औसत से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक माह अगस्त और सितंबर में भी बारिश की पेशकयासी की गई है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जोबली हिल्स में वाक़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जानिब से ग्रीन इंडिया चैलेंज का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत 1 लाख पौधे लगाने का निशाना बनाया गया है। राज्यसभा रुकन जे संतोष कुमार ने मज़कूरा चैलेंज का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि इस मौके पर बैडमिंटन कोच गोपी चंद के अलावा मेगा स्टार चिरंजीवी और तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण भी मौजूद थे। మొక్కతో పాటు नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र।
हिमाचल प्रदेश के कन्नौर ज़िले से लगी चीन की सरहद पर चीन ने अपने इलाके में तेज़ी से सड़क की तामीर की है। कन्नौर ज़िले के मुकामी अवाम और दीगर अफराद ने कहा है कि 2 माह कबल वहाँ कुछ भी नहीं था, मगर चीन ने 2 माह से कम मुद्दत में भारत से लगी सरहद पर सड़क तामीर कर ली। कन्नौर ज़िले के चारांग गाँव के मुकामी अफराद ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो सरहद के करीब अपनी बकरियों को चराने पहुँचे तो उन्होंने चीन के इलाके में बनी हुई सड़क देखी। दूसरी जानिब कन्नौर ज़िले के SP ने वाज़ेह किया कि भारत के इलाके में चीन की जानिब से किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं की गई, बल्कि चीन अपने इलाके में सड़क तामीर कर रहा है। मैं और मेरे चारंग गाँव के लोग 9 आदमी हम लोग और मेरे 16 खच्चर लेकर के हम खिमकुल्ला चाइना बॉर्डर की तरफ फौज के साथ रेकी करने गए थे सर। तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि खिमकुल्ला के पिछले साइड को चाइना ने रोड ला रखा है 2 महीने के अंदर सर। पिछले अक्टूबर में वहाँ पर रोड नहीं था, अभी 2 महीने के अंदर चाइना ने इतना तेज़ी से हमारे तरफ वो रोड ला दिया सर। कोरोना वायरस की वबा के दरमियान बकरा फरोशों को भी नुकसान का सामना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई बकरा फरोशों को आज दिल्ली में देखा गया, जो बकरे की फ़रोख्त के लिए हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली का रुख कर चुके हैं। बकरा ताजिर शिमान अली ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बकरे भी ला सकते थे, मगर कोरोना वबा के बायस उनकी ज़ायद फ़रोख्त ना होने का ख़तरा बरकरार है, और अगर ऐसी सूरत में वो बकरों को दोबारा अपने मुकाम पर ले जाते तो उन्हें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। मशरक़ी हिंदुस्तान की बेशतर रियासतें सैलाब की जद में हैं। बिहार के अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नागांव और आसाम में भी सैलाब से हालात मज़ीद अबतर होते जा रहे हैं। बिहार दरभंगा ज़िले में सैलाब का पानी सड़कों पर आ चुका है और सड़कों पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की आमद-रफ्त में परेशानी का सामना है। कई इलाकों में रिहायशी मकानात सैलाब के पानी में डूबे हुए नजर आए और रिहायशी अवाम घरों को छोड़कर सड़कों पर दिन और रात गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी किस्म की सहूलत उन्हें नहीं मिली। दूसरी जानिब आसाम में सैलाब से अब तक 90 लोगों की मौत वाक़ हुई है। वाज़ेह है कि ब्रह्मपुत्रा नदी के ख़तरे के निशान से ऊपर बहने के बाद बिहार, आसाम के कई अजला सैलाब की जद में आ गए हैं। दूसरी जानिब नेपाल, चीन और बांग्लादेश में भी सैलाब ने तबाही मचाई है। कोरोना वायरस का कहर तेज़ी से जारी है। हिंदुस्तान भर में 13,87,434 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि मोहलिकीन की तादाद 32,119 तक पहुंच गई। अमवात की तादाद बढ़कर 32,127 हो गई। सिक्किम में इतवार के रोज़ कोरोना से पहली मौत हुई और अब यहाँ की रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन को 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ईस्ट सिक्किम में ये मौत हुई है। मरने वाले शख्स की उम्र 76 साल बताई गई है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक दिन में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के मामले। इस दौरान राहत की बात यह रही कि मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 63.45% से बढ़कर 63.93% हो गई है। मरने वालों की शरह भी पहले के 2.38% के मुकाबले में कम होकर 2.31% पर आ गई है। महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में रिकॉर्ड नए मामले आए हैं। इन 7 रियासतों में 37,000 से ज़ायद नए मामले और 562 मजीद लोगों की मौत हुई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कुर्बानी के अय्याम में जानवर की कुर्बानी ही वाजिब, अय्याम गुजरने के बाद रकम सदका की जा सकती है। सेक्रेटरीट की मसाजिद का इंहदाम काबिल मजम्मत, हुकूमत से दोबारा उसी मुकाम पर मसाजिद तामीर करने का मुतालबा। शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया की मीडिया कॉन्फ्रेंस।
GHMC मेयर बी राम मोहन कोविड पॉजिटिव, मेयर ने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया। शाहबाद हुदूद में हुए सड़क हादसे में बाइक पर सवार 2 भाई मुकामे हादसे पर ही फौत, मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।